Yes. Okay, so my initial comments is it was a weird kind of a mock, not really expected, because last couple of mocks were more balanced, reasonable logic. Now I talk from perspective of the content of the passages given plus questions also, uh, and also the VA part. Now VA part, we already know that IMS is notorious for very, very long summary questions and equally long options, and with minor differences in them. So sometimes it is wise to leave them. No point, because such summaries never come in CAT. That can be safely said. So what is their logic? They only know. Apart from that, they are known to be to give easy para completion questions compared to the rest of the guys, and that also was evidence this time. Para completion were easier. Jumbles were difficult, quite difficult. One, I would say, one or two were okay. One was still better, but one was a little tricky. So VA was okay. I mean, I would say that barring summaries, okay. जम्बल्स का कंटेंट बड़ा ऑड था इस बार. मतलब आप अगर देखोगे कि पहला वाला था ब्यूरोक्रेसीज के ऊपर, राइट, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स में कैसे ब्यूरोक्रेसीज फंक्शन करती है. Now generally we would not be reading such like political kind of a polity kind of passages. तो थोड़ा सा इसमें हम हिल सकते थे. Then we had the second one about that was a very, very off track kind of a topic, necropolitics. नाउ नेक्रो किसी को पता है तो ठीक है, नेक्रो मीन्स डेड और डेथ से रिलेटेड होता है. सो दिस वाज अ प्रीटी ऑड काइंड ऑफ अ टॉपिक एंड पैसेज. बट हैविंग सेड दैट, क्वेश्चंस इसके आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो क्वेश्चंस इसके मुश्किल नहीं थे अगर किसी ने ये किया हो तो. देन वी Yes, हैड sir. हॉकिंग, राइट, यू एग्री, राइट? हॉकिंग वाज okay, it was not very difficult, not very easy, it was a The moderate. same, the questions were Yeah, better. questions were straightforward kind of, you can say. And the last one again was a, I mean, again, the argument was straightforward, simple, but there was a few things here which we'll highlight when we talk about it. So overall, I mean, if you compare it with the IMS का CL, sorry, CL का, CL इस बार चारों passages were very readable, very logical, but obviously their questions में इनके problems थी कई सारे which I had highlighted. इनके क्वेश्चंस में एक आध में है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें क्वेश्चंस में. पैसेज थोड़ा सा वियर्ड टाइप के लगे बस. सो ठीक है, देखो, नाउ माय व्यू इज दैट एनी मॉक वी गिव, इसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा सब में, तो आपको एक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है. यू हैव टू फिगर आउट विच वंस टू डू एंड देन मेंटेन योर कंसिस्टेंसी. सो लेट मी हियर योर व्यूज ऑन दिस. एनीवन, आपको क्या लगा इसको करके कंपेयर टू द अदर वंस इन ऑल? May I speak, sir? यस यस प्लीज. यस सर, मैंने सर चारों पैसेज विद इन टाइम फ्रेम में देखे थे, तो सर हमको सर थोड़ा डेंस लगा सर, मतलब, और चारों इक्वली डेंस थे सर. मतलब आपको मल्टीपल एंगल से सोचना है हर एक, और कुछ फाइंड करते भी वक्त आपको बहुत ज्यादा प्रिसाइज और क्योंकि और टाइम भी कम था, तो टाइम फ्रेम में सर इतने डेंस करना थोड़ा सा हमको सर टिपिकल Yes, लगा. yes, ये I मेरा fully agree. I fully agree. They were very dense and there was no respite. See, what happens is when you are doing any such test, then you feel कि चलो अगला पैसेज तो थोड़ा सा रीडिंग में कंफर्टेबल, तो कंफर्ट देगा, अगला तो देगा, वो मिल ही नहीं रहा है कहीं पे भी. जबकि कैट में ऐसा नहीं एग्जैक्टली होता सर. है ना. कैट में ऐसा नहीं होता है, आपको दो पैसेज तो कंफर्ट देने वाले मिल जाते हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट समझ में आ जाएगा. यहाँ पे हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ब्यूरोक्रेसीज आर फोर्स्ड इन द स्मिथी ऑफ पॉलिटिक्स, डिसीजन टू क्रिएट सच मेंटेन देम by political actors involved in governance. The modern democratic requires supporting bureaucratic. Here itself, you start losing interest in this bureaucracy, democracy, political governance. Nation that cannot feed is unlikely to be able to support a functioning. And then, but in such passages, what I feel is okay, you should persist because आपके पास में कुछ और ऑप्शन है नहीं. तो आप अगर थोड़ा सा persist करोगे, थोड़ा नीचे आओगे, then the things will start making more sense to you that what he has done is कि ठीक है, इसमें different political सिस्टम्स लिए हैं, उसमें उसने कोई सेंट्रलाइज सिस्टम लिया है और एक लिया है फ्रेगमेंटेड और एक लिया है एमर्जिंग और नेसेंट डेमोक्रेसीज. तो ये तीन उसने इसमें पॉलिटिकल सिस्टम लिए हैं और उसमें ब्यूरोक्रेसी कैसे बिहेव करती है वो ये बताया. तो अगर आप सेकंड, मतलब इफ यू कैन सर्वाइव द फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ एंड मूव टू द थर्ड एंड फोर्थ, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल
ease and कि ठीक है broad main idea emerges, तो then फिर उसके बाद में चैलेंज नहीं हुआ इसमें। तो कट ऑफ इसका कितना है यार, मैं भूल गया एक्चुअली। आई ट्राई टू 21 21 21 21 21 ओके। आई डोंट नो, आई फाइंड इट अ लिटिल स्ट्रेंज बिकॉज 21 के कट ऑफ के लायक नहीं है ये, 16-17 के कट ऑफ के लायक थी, बट एनीवे ठीक है। एग्जैक्टली सर। तो sometimes see, I'll tell you, don't take the figures that are published by these people also as some bible or as if, क्योंकि बहुत सारे लोचे होते हैं। अगर आप अब देखो, ये तो इतना डिक्लेयर नहीं करते ऐसे। अब टाइम का अगर आप देखेंगे, जो करंट मॉक था एम कैट 240, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट इन द इवनिंग, फर्स्ट जिसका हाईएस्ट वीआरसी स्कोर इज 60 एंड द 10th है दैट इज 42, तो दैट इज अब्सर्ड। मतलब हाउ कैन यू हैव सम विजार्ड हु कैन स्कोर 60 and then you will have the other people who score 40 and there is no difference। तो वो सब फज्ड होते हैं। ओके, यू कैन प्ले अराउंड विद दीज, तो इसलिए उसको हमें इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, पर ठीक है, वट एवर इट इज वर्थ। सो कमिंग बैक, फर्स्ट पैसेज इटसेल्फ इज लिटिल ओके, बट ठीक है, चलो इसको तो करना ही पड़ेगा। सेकंड पे चले गए, अब ये डायनामिक्स ऑफ डेथ और नेक्रोपॉलिटिक्स, सो दिस विल ऑब्वियसली इट विल टर्न यू ऑफ अ लिटिल बिट, राइट। तो इसको हम बाद में करेंगे। आई सेड लेट मी हैंडल दिस लिटिल लेटर, then we go to the third one. Again, this is not something which I really like to do. Science passages I'm not very fond, I would want to do them in the end, so इसको भी बाद में करेंगे। then we come to this screen saturation, knowledge workers, crafts people, okay, materially illiterate, इसको कर लेते हैं। तो then my order was actually 1 2 and then 1 2 1 4, sorry 1 4. So my order, I decided that 1, then 4, then 3, and then 2. This would be the order that I would have handled. Now, yes, Sagar. सर एक जनरल क्या? कि जैसे अब आपके हिसाब से, जैसे सर मेरे को भी पैसेजेस वियर्ड लग रहे थे। ठीक है, गो अहेड। आपकी आवाज चली गई। हेलो। Yes, now you are back. यस सर। सर जैसे मेरे को भी पैसेजेस वियर्ड लग रहे थे पहले, तो मेरी सर अप्रोच ये थी कि पैरासमरी पे स्टिक कर लेते, क्योंकि मतलब मेरे को लगा कि उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लूंगा तो मे बी वो सही हो जाए, क्योंकि पैरासमरी में मतलब ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं। सर वुड दैट बी अ बेटर अप्रोच? मतलब नहीं, अगर अब आपका रिजल्ट, आपने रिजल्ट तो बताया नहीं, रिजल्ट क्या निकला? सर मैंने उस टाइम नहीं किया था, बट मैंने बाद में उस टाइम सोचा था, मतलब बाद में मैंने जब पैरासमरीज अटेंड किए तो फिर सारे सही थे, बट स्टार्टिंग में मैंने नहीं किए थे। मतलब एक किया था, वो ठीक था, बाकी 2 नहीं किए थे। सो आई थिंक कि अगर मैं वो स्विच कर लेता तो लेकिन आपने टाइम नोट किया है कितना देर लगा आपको करने में? नहीं सर, वो टाइम नहीं नोट किया था। टाइम नोट करना जरूरी है उसमें, क्योंकि ऐसे बिना उसके तो हम सी इफ वी स्पेंड 4-5 minutes on a summary Yes, sir. and make it mark it correct also, then it is of no use. है ना? So the whole idea is, see, there are 3 summaries. Now if suppose these kind of long summaries, so I was speaking to somebody who has taken 4 minutes, 4 minutes and 3 minutes in these 3 summaries. So if you take 11 minutes and that too for 3 questions, then that instead of that pick up an RC, because RC can be done more quickly. तो मेरा ये सजेशन है, बट यस इफ यू फील मोर कंफर्टेबल विद पैरा समरी यू शुड डेफिनेटली, बिकॉज कैट में इन एनी केस इतनी लंबी पैरा समरी नहीं होती, तो पैरा समरी तो करना ही करना है। मतलब दैट इज समथिंग विच आई ऑलवेज से दैट हैज टू बी डन। तो पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन तो आपको करना ही करना है। जंबल में आपको देख लेना है, ठीक है, डिफिकल्ट हुआ, कुछ लग रहा है तो छोड़ दो, और यू कैन रिविजिट इट इन द एंड इफ यू हैव टाइम, बट अदरवाइज 5 ये तो करने ही करने हैं, ठीक है। बट इनकी लंबी होती है, कोई बात नहीं, वो देखते हैं उसको। अगर इतना लंबा है और बहुत क्लोज, सी प्रॉब्लम क्या है, लंबा होने से काम नहीं होता, बहुत क्लोज ऑप्शन बना देते हैं ना, जिसमें कि देखो, एक तो क्या होता है कि बहुत क्लियरली दिख जाएगी हाँ लंबे लंबे ऑप्शन भी हैं, बट देन देयर इज वन एलिमेंट दैट इज देयर इन वन एंड नॉट इन रेस्ट ऑफ देम। But if let's say there are everything that is present in 2 and you are just back and forth going between the 2 options and then the main passage and spending time and that too marking wrong, then it becomes difficult. सर ऐसा लास्ट वाली समरी में है, इसमें 24th क्वेश्चन इसमें पहली में भी है ऐसा, एक्चुअली इसमें फर्स्ट में भी है और यस सर फर्स्ट में भी और लास्ट में तो और भी ज्यादा। तो ठीक है, चलो देखते हैं। So let us now go and first tackle the VA part. Let us look at the
Now this is what I call irrational or illogical parasymbol. Why is that? Let me tell you. A competitive market typically features numerous buyers, sell similar goods, and lacks information. This is an independent sentence. It can come in the beginning. Any deviations from a fully competitive model, such as unavoidable, needs to be factored into of these markets. Okay, this cannot begin. We know that. Despite this cannot begin. Competition in market arises as agents strive for the best deal, inducing rivalry among other market participants. This also is a fully independent statement, right? So we can begin with this as well. Now, when we try to figure it out, we say, okay, we suppose start with one. A competitive market typically features numerous buyers, similar goods. Competition arises as agents strive for the best deal. So agents we can say that he's talking about numerous buyers and sellers. Right? This he may be calling. So that's the way I thought. I thought that new buyers and sellers, and then agents strive for the best deal, inducing rivalry among other market participants. Okay, and then we go any deviation from a fully competitive model, such as unavoidable concentration in digital market due to network effect, need to be factored into the normative assessments of these markets. Okay, and then despite this, even in seemingly competitive markets, pockets of unequal power may exist due to situations like a single employer. So now things have started getting a little muddled here. 2 pehle aayega, 3 pehle aayega. Despite this, despite what? This stands for what? Despite competition. So 4. So Even मैंने तो deviation से relate कर दिया. देखो, despite this, so can it follow 1? So my thought process was this cannot follow 1. This can follow 4, right? Even in seemingly competitive markets, pockets of unusual power may exist. Any deviation from only such as unavoidable. So 3 and needs to be factored into the normative assessment. तो ये end में आ जाएगा, ठीक है? And this should come before it. This is my one pair that I could figure it out. Now the challenge was whether to put this or this. So I said despite this. So despite this competition. So I said 1 4 3 2. So this was my response. Whereas this fellow's response is 4 1 3 2. I also did 1 4 3 2. मैंने भी 1 4 3 2 ही करा था. तो अब देखो ये सर मैंने भी 1 4 3. हाँ तो अब है ना, अब देखो ये क्या है कि he is justifying 4 here. And he says that competition market, this looks like a better opening statement. Sir, looks like मतलब क्या है? इसकी शक्ल पे तो नहीं लिखा हुआ ना. इनका जो आंसर जो दिया हुआ है इन्होंने explanation वो इतना vague है कि this is a better than this for some stupid or some very vague reason. So which I of course was not able to understand, and still not able to understand. It is despite this, so this would refer to competition rather than a competitive market typically features. So despite this, I don't know. So Sir, I connected this with similar goods lack of information disparities. Like इसके बाद भी competitive market में मतलब इतना similarity होने के बाद भी competitive market में जो pockets होती है मतलब unequal powers होता है वो फिर भी exist करता है. I made a pair 1 3 2, but sir मैं 4 को place ही नहीं कर पा रही थी फिर. तो फिर 4 को आपने end में लगा दिया क्या? Yes sir. 1 3 2 4. सर सेम सर मैंने भी 1 3 2 4 ही करा है. चलो ठीक है, छोड़ो. अब देखो इसको there is no point in discussing because as per me this is not a very good parasample question. We are not able to figure out the story, the main idea, how it is flowing. This fellow has given for some reason 4 1 3 2. तो ठीक है, उसको लगा के चलते हैं आगे. मतलब I don't what is the point in discussing this when I am myself not able to figure out कि 1 पहले लगाऊं कि 4 पहले लगाऊं. अभी भी 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है. अब 4 लगा दिया पहले इसने, तो ठीक है, कोई बात नहीं. We'll move. Let's have a difference of opinion if it calls for. This was okay. ठीक है, this was a moderate question. Moderate क्या मतलब? Easy बोलूंगा मैं इसको. इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे. एक तो स्टम्बलिंग ब्लॉक इज देयर इन एबिलिटी, ठीक है, टू आर्टिकुलेट अ फंडामेंटली इंट्यूटिवली परसुएसिव फीचर ऑफ retributivism, ठीक है. दिस हाइब्रिड थ्योरी, नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लू. So where is the hybrid mentioned here? 4 integrating elements of both stories. So 4-2 becomes a very concrete pair. Obviously 4-2 cannot start because
in response to this dilemma. So this dilemma cannot begin. So obviously 4-2 बाद में आएगा. तो अब आपके पास में दो ही ऑप्शन बच गए, या तो 1-3-4-2 कर दो या 3-1-4-2 कर दो. Right? These are the only two options left. So obviously in its सर intuitive. 2 को लास्ट में रखेंगे ये, क्योंकि हाँ? बाद में नहीं आ सकता 2 के बाद कुछ. नहीं 4-2 आ गया ना. तो अब आप क्या बोल रहे हो? अच्छा आप ये कह रहे हो कि 1 बीच में भी आ सकता है 4-2. बीच में नहीं, 2 के बाद. नहीं 2 के बाद नहीं. अभी एक सर यस सर 2 के बाद नहीं आएगा 1 क्या चीज 2 के बाद क्यों आएगा? 1 क्यों? एक मिनट सर मैंने 1-4-2-3 किया था. नहीं नहीं नहीं, एक मिनट अभी रुको तो सही आप अभी. अभी तो पहले ये बताओ ना. वन, द स्टम्बलिंग ब्लॉक इज देयर इनएबिलिटी टू आर्टिकुलेट. तो व्हाट इज देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी व्हाट इज देयर? ये भी तो एक बहुत बड़ा क्लू है आपको. यस भुवन बोलिए. सर इसमें ये जो पैरा जंबल था, इसमें सर बहुत टेक्निकली बहुत इजी क्लूज है. जैसे 4-2 का तो सर क्लू था. अब जैसे ये जो इन रिस्पॉन्स टू दिस डिलेमा है, इसके लिए भी एक क्लू छुपा हुआ है थर्ड में, बोथ ऑफ विच सीम ग्रैपल विद अ सिग्निफिकेंट इशू. तो वो सिग्निफिकेंट इशू का रिस्पॉन्स टू दिस डिलेमा वो नहीं, रेफर एक इसको. मिनट एक मिनट एक मिनट. आपने क्या बनाया फिर? आपने क्या आंसर बनाया? मैंने आंसर ऐसे बनाया था सर 1-3-4-2. नहीं, आंसर क्या है? तो 1-3-4-2 तो गलत है ना इसमें. कोई 1-3-4-2 गलत है इसमें. आप देखो अभी आपको मैं बता रहा हूँ. मैं आपको जो आप क्लू बता रहा हूँ ना, वो ये है क्लू इसमें. देयर इनएबिलिटी. व्हाट इज देयर स्टैंड फॉर? कैन एनीवन टेल मी? Sir, some theorist. नो, देयर कैसे हो सकते हैं थियोरिस्ट? भाई आप थर्ड सेंटेंस पढ़ो. In its intuitive appeal, retributivism offers a stark contrast to consequentialist theories of punishment that concentrate on blah blah blah, both of which seem to grapple with a significant issue. The stumbling block is their inability. ये जो consequentialist theories है ना, इनकी inability, that is the stumbling block. So this there is linked to these theories, and therefore 3 and 1 again is a mandatory pair, and 4 and 2 is a mandatory pair. And this dilemma that it is inappropriate to punish the innocent and to inflict disproportionate punishment on the guilty. तो ये जो डायलेमा है ना कि क्या inappropriate है to punish the innocent और ये जो है inflict disproportionate on guilty, this dilemma is asking them to adopt a mixed approach. So इसलिए 3-1-4-2 इसमें है. That's it. और कुछ नहीं. Yes बताइए सर. एक बार देयर वाला वापस बता सकते हो? भाई. ये देयर जो है, this refers to consequentialist theories. और कुछ नहीं है इस सेंटेंस में. और देयर कैन नॉट रेफर टू एनीथिंग एल्स. कैन यू फिगर आउट एनी अदर सेंटेंस वेयर और एनी अदर नाउन जो देयर इसका प्रोनाउन बन जाए? आपने 2 और 4 को तो फिक्स कर दिया. 4 और 2 को तो हमने फिक्स कर दिया पहले ही. यस सर. ठीक है. नाउ देयर इज नथिंग इन 2 कि इसके बाद में ये आ पाए. ठीक है. तो इसलिए ये देयर इनएबिलिटी इज कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थियरीज. तो 3-1-4-2 डिफिकल्ट मतलब इन द सेंस रीडिंग में इसलिए समझ नहीं आएगा. अभी ये पूरा पढ़ने के बाद भी हमें समझ नहीं आएगा कि यार बोलना क्या चाह रहा है. बट क्लूज दिए हुए तो क्लूज से आप निकल सकते हो इसमें. दैट्स माय पॉइंट. ओके अगेन नाउ दिस वन इज अगेन आल्सो इज अ आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट. सेकंड चलो आपने फिगर आउट किया कि सेकंड से स्टार्ट कर देंगे हम. द लैंड लेबर एंड रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ बिग टेक फर्म्स हाईलाइट देयर डिसरिगार्ड फॉर अफ्रीकाज नीड्स एंड इंटरेस्ट, thus jeopardizing the growth of domestic industries. ठीक है भाई. अब कहाँ जाएंगे? तो I looked at it, given this history of neglect towards African needs and issues. Okay, they are jeopardizing the growth of domestic industry. It is hardly surprising that African governments have started exploring alternatives and enforcing regulation on these firms. And then I said, okay, additionally these firms face legal challenges. तो regulations भी हैं इनके ऊपर और additionally legal challenges भी हैं. और उसके बाद में 4 उसको conclude. This was my thought process. Okay, this was my thought process. And then in the end, unchecked spread of disinformation has not only but provided a platform. तो obviously अब इसको कुछ और ही मंजूर है. ठीक है. तो he has given an order of 2-1-4-3, right? 2-1-4-3. अब 2-1-4-3 देखते हैं इसका क्या लॉजिक है. एक मिनट जरा रुक जाओ. लेट मी जस्ट फिनिश इट. लेबर एंड रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस हाईलाइट दैट डिसरिगार्ड, thus jeopardizing the growth of domestic industries. Additionally, these firms face legal challenges. मतलब इन दोनों के अंदर क्या लिंक है कि एक तो ये कह रहे हैं कि लेबर एंड रिक्रूटमेंट हाईलाइट देयर डिसरिगार्ड फॉर अफ्रीकाज नीड्स एंड इंटरेस्ट, thus jeopardizing the growth of domestic industry. सो ये जो एंड में आया है लॉजिक ये कहता है कि जो एंड में सेंटेंस के एंड में है यही इसका नेक्स्ट सेंटेंस का कनेक्शन होगा. एंड यू विल टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस, समथिंग कनेक्टेड टू दिस jeopardizing the growth of domestic industries. Rather
he chooses to talk about additionally these firms face legal challenges. यार मतलब ये बात कर रहा है कि ये टेक फर्म्स कैसे एक्ट कर रहे हैं, दे आर हाईलाइटिंग, दे आर डिसरिगार्डिंग अफ्रीकाज नीड्स एंड इंटरेस्ट, और ये बोल रहा है कि एडिशनली दीज फर्म्स फेस लीगल चैलेंजेस. तो इज देयर एनी कनेक्ट बिटवीन 2 and 1? आई फेल टू अंडरस्टैंड. यस भुवन. सर वैसे मेरे को भी यही चैलेंज लग रहा था कि सर इसमें कनेक्शन मिल नहीं रहे थे, तो सर मतलब सर बहुत मतलब ना बड़ा बहुत तो वेगली छोड़ मेरा दो ना ना, 2-1 तो छोड़ दो भाई, छोड़ दो उसको, नहीं मिल रहा तो छोड़ दो. देखो आप मतलब आप एक सेंटेंस में बोल रहे हैं कि बिग फर्म्स क्या कर रही हैं और एडिशनली दे फेस चैलेंजेस. तो या तो ऐसा होता है कि दे आर फेसिंग सम चैलेंज एंड एडिशनली दीज आर आल्सो द इश्यूज विद देम, तो बात ठीक भी है. तो ये इसमें क्या किया है कि इसने कहीं से उठा लिया है, बीच बीच में कोई सेंटेंस है या तो खा गया है या कुछ क्या किया है. सो ही हैज प्लेड सम ट्रिक. आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर दिस ऑन द नेट आल्सो, कि मैं समझूं ये कहाँ से लेके आया है और उसमें कैसा पैराग्राफ बना हुआ है, just to enhance my understanding. I do that for all the parajumbles. I try to go to the source जो मुझे समझ नहीं आता, and then I am able to कई बार figure out या find out कि इन्होंने क्या बदमाशी करी है. एक सेंटेंस ऊपर से उठा लिया, दूसरा यहाँ से उठा लिया, तीसरा यहाँ से उठा लिया और उसको जोड़ दिया. तो ये सब करते हैं ये लोग, बट इसमें तो मुझे ये मिला ही नहीं कहीं पे भी. आई कुड नॉट इवन. तो ठीक है, इट्स ओके. अनदर वन ऑफ दोस क्वेश्चंस. यस यस उत्सव. सर मैंने इसमें 2-4-1-3 करा था क्योंकि मुझे 4 और 1 ऐसा लगा कि रिलेटेड है, क्योंकि 4 की एंडिंग जो है tarnishing the reputation of these companies से फिर हाँ ठीक है, additional- फर्दर टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ दीज कंपनीज एडिशनली दे फेस लीगल. ठीक है, कोई बात नहीं. आपने भी कोई गलत तरीके से नहीं सोचा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने कुछ और ही तरीके से सोच रखा है, तो इसलिए हम कैसा भी सोचें उसको क्या करना. ठीक है, तो लेट्स लीव इट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोस्त. तो इसमें से तीन में से हमने इसमें सिर्फ एक देखा जो कि कर सकते थे, दो में थोड़ी सी गड़बड़ थी. एक्चुअली सर ये तीनों ही गलत हो गए थे. कोई बात नहीं, हो जाए तो कोई बात नहीं, नॉट टू वरी, नो सर प्रॉब्लम. लिटरली सारे आप वाले ही मार्क करे थे. हाँ तो वो क्योंकि लॉजिक वही कहता है. अब ये दे हैव देयर ओन लॉजिक. ठीक है, ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ सेंसरशिप कैन पोटेंशियली हिंडर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. तो अब इसमें बहुत क्लियर है कि यहाँ पे तक अभी कोई सेंसरशिप की बात नहीं हुई है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है. टू एड्रेस दिस सम प्रपोज अप्लाइंग नाउ सेंसरशिप कम्स इन. censorship to the model training data output and output, aiming to prevent them from generating inappropriate or harmful content. Now it has only two options. It can come either at 3 or at 4. So can it come at this 3? The application of censorship can potentially hinder the free flow of information. Nevertheless, despite the good intentions, they pose certain challenges. ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना, फिर तो nevertheless का कोई मतलब ही नहीं. See, if we put it here, then we are already giving a challenge that it can potentially hinder the free flow of information. And then if we are saying nevertheless, despite the good intention, they pose certain challenges. So this is a very, very wrong place for this sentence to come. So it will come merely in the end. Okay, so this was a very logical and sane question. End में आ जाएगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि they pose certain challenges and this is the challenge. The application can hinder the free flow of information. So this is a nicely, it will come in 4th place. Okay, so I hope इसमें किसी को दिक्कत नहीं. Let's look at the next one. Web3 is often associated with improved security, privacy, and greater control. So advent of internet has revolutionized the way we communicate, work, and transact. Recently, we have entered the era of Web3, the next evolution of the internet. Now, it can come at 1. Web3 is often associated with improved security. Web3 allows users to interact with decentralized network and applications, fundamentally altering our relationship with the digital world. Now, can it come here into Web3 is often associated with improve this. These features can potentially reshape the financial system, promote more secure and private transactions. तो ये यहाँ पे बात हो रही है ओवरऑल इन जनरल डिजिटल फुटप्रिंट की. और ये सेंटेंस जो है आपका, अगर आपने सेकंड में लगा दिया तो सेकंड के बाद में फिर सीधे वो फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहा है. So therefore, better place for this to come is 1 instead of 2, isn't it? सर 2 नहीं कर पा रहे थे, मतलब 1 या 2 पे बहुत कंफ्यूजन था इसमें. Yes sir. Okay. तो अगर आपका क्या व्यू? 2 कहीं ना कहीं सर लग रहा था 2 ही किया है. 2 किया है. सर मैंने भी मतलब 2 ही किया है क्योंकि these features पता नहीं चल पा रहा था फिर किसे कहूँ. Yes. Same reason, sir.
सर 90% लोगों ने 2 ही मार्क करा है। ओके, यस माजिद। ये these features क्या कहना चाहते हैं? मैंने भी वो these features की वजह से 2 ही मार्क किया है। एंड सर यहाँ पे वेब3 अलाउस कर रखा है और वहां पे लिखा है वेब3 इज ऑफन एसोसिएटेड, तो वो लगा भी कि अलाउस के बाद इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम करते हैं, इस वजह से भी 2 में मार्क किया। देखो सेम मेरा भी यही केस था, 2 मार्क किया था, फीचर्स बता दिया इसने आगे कि ये फीचर्स हैं, तो उस वजह से। नहीं देखो, मेरा माय व्यू ऑफ पुटिंग इट and agreeing with this fellow's one, yes, Gautam has got some point. Sir, yes, sir. I also mark it 2 because first they have said like improved security, privacy they have given, and after that they have defined like regarding the security policies now in the financial system, more secure thing. So because of that. No, but see, this can carry from this sentence also, no? So my view was this, that this is a broader statement about Web3, not particularly relevant only to the financial sector. It has with improved security, privacy, and greater control over one's digital footprint, and it allows users to interact with decentralized networks and applications, fundamentally altering our relationship, right? So this lays the background for this sentence, and then we are saying that all these things now put together, these features, whatever it is, so these also are features only, na? They are the users to interact with decentralized network and applications, fundamentally altering a relationship. So it can potentially reshape the financial. Now he's getting into more specific thing. Despite its probability, anyway, the 3 or 4 पे तो आएगा नहीं वो. So 1 and 2 में yes, it was tough, but somehow I found that 1 पे this is better because the way it is said, it is often associated with. So often associated with, this is again a part of the introduction. It is better that you put this kind of sentence in the introduction. That advent, recently we have entered into the era of Web3, the next evolution, and this is often associated with improved security. It allows users to interact with this. So ठीक है, कोई बात नहीं, डाउट रहा आपको, कोई बात नहीं. 1 is the correct answer, and fine, I agree with it. All right, now this is again one of those which I was saying are a little long drawn summaries with long drawn and very little difference between these, right? So deep feelings की बात करी है इसने, that deep feelings are like great works, right? And we don't realize is reproduced in consequence of which the soul itself knows nothing. So this is something that is we are not aware, and then they can take with them their own universe and light up with a passion. There is a universe of jealousy, a universe of blah blah blah. So deep feelings like great works carry more meaning than they express and shape our habits, actions, and attitudes, often unbeknownst to us. So इसमें क्या दिक्कत है वैसे? Is there a problem? Deep feelings carry more meanings. They can express, shape our habits, actions, and attitudes. But मैंने तो नहीं काटा था, इसे देखने के बाद रख लिया था. ना रख लेना है इसको, इसमें ये ब्यूटी और अब्सर्डिटी वाली बात नहीं है, ठीक है? तो great feelings create their own universe, each with its own climate, metaphysics, and attitude, be it of jealousy. ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, ये गलत है. इसमें great works नहीं बताया उसने. This we can remove. Emotions furnished by beauty or absurdity not only shape our habits. Again, this is not again correct. So इसमें second और third आप थोड़ा आसानी से eliminate कर सकते हो. Then you are left with 1 and 4. Like great works, deep feelings unbeknownst to us, condition our habits and actions. तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये सेम है, right? Carry more meaning, shape our actions, define their unique universes, particularly those stirred by beauty. इसमें सिर्फ ये फर्क है D में, and that's why D became the correct answer, because ये जो beauty और absurdity की बात हुई. Yes, तनुज. सर मुझे ये ढंग से समझ ही नहीं आया सर, ये बोलना क्या चाह रहा था. मत समझो, कुछ नहीं, छोड़ दो ना यार, कोई समझने की जरूरत थोड़ी है इसमें. इसके ऊपर थोड़ी आपसे कुछ पूछेंगे वहां पे, ठीक है? कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये कह रहा है कि जो आपकी ग्रेट, जो डीप फीलिंग्स है हमारी, वो ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट जैसे होती है, ग्रेट वर्क्स जैसे होती है, और वो हमारे अलग ही यूनिवर्स हमारे लिए क्रिएट कर देती हैं, और वो यूनिवर्स ब्यूटी है, एब्सर्डिटी से डिफाइन हो सकता है. देखो क्या होता है ना, एक बात आप समझो कि ये इतना सा जो एक किसी ने काट के दे दिया ना आपको एक एक्सट्रैक्ट, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट इट विल
रियली मेक कंप्लीट मीनिंग टू। इस तरह का डेंस जो ये सेंटेंसेस है ना, ये गलत ही है वैसे देखा जाए तो। दे आर नॉट सपोज टू बी गिवन समरी, बट इस महान आदमी ने दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे उसको। लेकिन इस तरह की उसमें आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और आपको तो सिर्फ ये देखना है कि कौन से आप इजीली रिमूव पहले कर सकते हो, ठीक है। इसको करने का तरीका ये है, जैसे यहाँ पे ग्रेट वर्क्स लाइक आर्ट नहीं बताया, लाइक ग्रेट वर्क्स नहीं बताया, इसने ग्रेट फीलिंग्स बोल दिया, जबकि वहाँ डीप फीलिंग्स बोला गया है, ठीक है। उसने उसको दोनों को मिला के ग्रेट फीलिंग बोल दी। इसके अंदर तो डीप फीलिंग्स भी नहीं बोला है और कोई ग्रेट वर्क भी कुछ नहीं बोला है, तो ये दो तो रिमूव ही हो गए। फिर आपके पास में बचा 1 और 4, तो 1 और 4 में डिफरेंस देख लो, उसमें थोड़ा ज्यादा बताया इसमें एब्सर्डिटी ब्यूटी। यस शगुन। सर फोर्थ वाले में ऐसा पैसेज में थोड़ी लिखा है कि पर्टिकुलरली दोस्त करके। आई मूव ये लिखा ना, बिकॉज़ ऑफ simultaneously as vague, as definite, as remote as those furnished by us by beauty or aroused by absurdity. सर फोर्थ सर आई थॉट इट्स अ जनरल स्टेटमेंट एंड ऐसा नहीं लिखा है कि पर्टिकुलरली दोस्त तो आपने वन लगा दिया। यस सर, आई मार्क 1। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं को मार्क्स दे दूंगा, क्योंकि ठीक है, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विथ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस समरी इटसेल्फ विद दिस ऑप्शंस, बट ठीक है, जो भी है। इसमें मुझे दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि इसमें ये ब्यूटी और अब्सर्डिटी वाली बात थोड़ी ज्यादा बता दी, दैट्स इट। बाकी के अंदर कोई फर्क नहीं है। आप देख लीजिए, इट कंट्रोल्स आवर हैबिट्स एंड एक्शंस, तो हैबिट्स एंड एक्शंस एंड एटीट्यूड भी लिख दिया, एंड अनबिनोन्स टू अस। अनबिनोन्स मतलब विदाउट आवर अवेयरनेस। यस सर। सर बट मुझे तो मतलब पर्टिकुलरली दोस्त थोड़ा डिसऑर्डर्ड लग रहा था। ठीक है, छोड़ दो ना, ज्यादा क्या है उसमें डिस्कस करना, छोड़ दो, लीव इट, लेट्स गो। मुझे भी सिर्फ सेकंड ऑप्शन में मार्क कर दिया था, ब्यूटी सेकंड तो हो, देखो सेकंड और थर्ड को मार्क करा है आपने तो गलत करा है, ठीक है। सेकंड और थर्ड कैन नॉट हैपन, बिकॉज सेकंड में ना तो डीप फीलिंग्स बताया हुआ है, ना ग्रेट वर्क्स बताया हुआ है। तो ग्रेट फीलिंग्स की कोई बात ही नहीं हुई है, यहाँ डीप फीलिंग्स की बात हुई है। डीप डज नॉट मीन ग्रेट, so you cannot choose 2, okay, and you cannot choose 3 also. The only toss up was between 1 and 4, okay, all right। अब ये देखो, इसमें एक चीज ऐसी है जो कि आपको आंसर पे ले आएगी, उसको भी थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो can someone tell me what it is on which I can shortlist at least? मेरा तो गलत हो गया था। सर शिफ्ट फ्रॉम मॉरल टू नहीं, मेटाफिजिकल। वो तो ठीक है। देखो क्या बोलता है कि एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी है और एक क्लासिकल सेंसिबिलिटी है। मॉडर्न सेंसिबिलिटी में जो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करता है उसका हीरो, और क्लासिकल में वो मॉरल प्रॉब्लम्स पे करता है, राइट। तो ऑल ऑफ दोस्तोयेव्स्कीज हीरोज क्वेश्चन देमसेल्फ एज टू मीनिंग ऑफ लाइफ। इन दिस दे आर मॉडर्न, दे डू नॉट फियर ridicule. What distinguishes modern sensibility from classical is that latter thrives on moral problems, latter means classical, and former on metaphysical problems. In Dostoevsky's novels, the question is propounded with such intensity that it can only invite extreme solutions. तो इसमें सिर्फ एक्सट्रीम सोल्यूशन है, एग्जिस्टेंस इज इल्यूजरी और इट इज इटर्नल। इफ दोस्तोयेव्स्की वर सैटिस्फाइड विद इंक्वायरी, ही वुड बी अ फिलोसोफर। तो अगर वो ये सिर्फ इंक्वायरी से ही सेटिस्फाई हो जाता तो फिलोसोफर है, लेकिन ही इलस्ट्रेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इंटेलेक्चुअल पास टाइम्स। तो उसने फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज में भी घुस गया और इसलिए वो आर्टिस्ट कहलाया, ठीक है। तो दोस्तोयेव्स्की's characters intense questioning of life meaning highlights the shift from moral to metaphysical in modern thought, leading to extreme solutions about nature of existence and highlighting Dostoevsky's artistic insight into consequences of such inquiry. This looks fine to me. Let's look at the second one. Characters being modern question the meaning of life. Being modern, ये गलत है, यहीं पे डिस्टॉर्शन आ गया। डीलिंग विद मेटाफिजिकल रादर देन मॉरल प्रॉब्लम्स, इनवाइटिंग एक्सट्रीम सॉल्यूशंस, inviting extreme solution or leading to extreme solutions, such as the idea that existence is either illusory or eternal. Making Dostoevsky an artist, ये गलत है। दोस्तोयेव्स्की आर्टिस्ट कब होगा, जब वो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज बताएगा। तो यहाँ पे उसने कॉन्सिक्वेंसेज भी नहीं बताया, तो दिस कैन बी थ्रोन आउट फॉर मेनी रीजंस। Dostoevsky's modern characters focus on metaphysical problems, contrasting with classical sensibilities focus on moral problems. Fine, okay. Ponder on the nature of existence in extreme terms. Fine, either fine. Which makes Dostoevsky a philosopher artist? इसने तो big deep feelings और great works को combine करके इसने भी philosopher artist बनाया। philosopher artist नाम का कोई वहाँ पे व्यक्ति नहीं है भाई, तो थर्ड को भी easily eliminate कर सकते हो आप। Then we go to fourth. The intense questioning about the meaning of life by Dostoevsky's characters demonstrate the shift from metaphysical to moral. ये तो उल्टा हो गया भाई, ये तो उल्टा बता दिया इसने, तो इसको भी आसानी से एलिमिनेट करोगे। तो दिस वाज एक्चुअली, इफ यू आस्क मी, द इजीएस्ट समरी ऑफ द लॉट, एंड यू कैन इजीली मार्क 1. Yes, Tanuj, बोलिए।
सर इसमें पैसेज में मुझे पूछना था कि ये इंटेंस क्वेश्चनिंग कहाँ से आ रहा है, मतलब ये इंटेंस क्वेश्चनिंग मीनिंग ऑफ लाइफ का कि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, इसको इंटेंसली क्वेश्चन करता है वो। तो उसमें एग्जिस्टेंस या तो इल्यूजरी है कि भाई हमारी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और या फिर इटरनल है। तो आंसर एक्सट्रीम में मिलते हैं आपको। भाई ये हटा लो यार, ये क्या है रोहित सिंह, ये आपने डाल रखा है बीच में एरो को, चीज को हटा दो यार। तो सर वो इंटेंस वर्ड इसलिए यूज हुआ है ना? हाँ? सॉरी सर, ये पता नहीं कैसे नहीं हो हट गया, रहा? सॉरी सर। अच्छा नहीं हट रहा, अगले तो नहीं आएगा। हाँ हट गया हट गया हट गया, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि इंटेंस वर्ड उसी लॉजिक से इन्होंने यूज किया है यहाँ पे। हाँ वही किया है, इसीलिए किया है, और कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तो आई होप कि दिस वाज ओके, एंड सो दिस वाज ओके, मतलब ये कर सकते थे हम, ठीक है। थोड़े लंबे लंबे हैं ऑप्शन, लेकिन कर सकते, समझ में आ गया ये। अब ये एक और आ गया, आइडलनेस इज द रूट ऑफ ऑल इविल, to prevent this evil one recommends work, however it is easy to see from the remedy as well as feared path that this whole view is a very plebeian मतलब very common place, okay, plebeian मतलब बहुत ही common place। तो आइडलनेस को हम रूट ऑफ ऑल इविल कहते हैं, लेकिन ये जो रेमेडी है, ये व्यू बहुत ही मतलब कॉमनली ऐसा समझा जाता है। आइडलनेस एज सच इज बाय नो मीन्स अ रूट ऑफ इविल। तो आइडलनेस ऐसा नहीं है, क्वाइट द कॉन्ट्री, इट इज ट्रूली डिवाइन वे ऑफ लाइफ so long as one is not bored। तो अगर आप आइडल हो, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन बोर नहीं हो रहे हो, तो इट इज अ ट्रूली डिवाइन वे। Certainly idleness may lose your fortune, may lead you to lose your fortune and so on, but of such things the man of noble nature has no fear, what he fears is boredom। कोई बात नहीं, आइडल बैठे हो, आपका सारा खजाना कोई लूट के ले जाएगा, तो एक नोबल नेचर के आदमी को इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसको सबसे डर लगता है बोर्डम से। The Olympian gods were not bored, they prospered in happy idleness। So far from idleness being the root of evil, rather it is true good। The root of evil is boredom, and that is what must be kept at bay। Idleness is not evil, indeed one can say any human who lacks appreciation of it proves he has not raised himself to the level of humanity। तो ये कह रहा है कि देखिए आइडलनेस जो है ये अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इविल नहीं है, लेकिन अगर वो उसके साथ में बोर्डम एसोसिएट हो जाता है तो वो रूट ऑफ ऑल इविल होता है। एंड एक नोबल कैरेक्टर का जो आदमी है उसको आइडलनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आइडलनेस रादर सीख करनी चाहिए और बोर्डम को दूर रखना चाहिए। केप्ट एट बे मींस दूर रखना चाहिए। और जो भी ह्यूमन इस आइडलनेस के एप्रिसिएशन को नहीं कर, इट डजंट हैव एन एप्रिसिएशन फॉर आइडलनेस, दैट फेलो हैज नॉट रेज्ड हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। इस तरह की बातें होंगी। द प्लेबियन व्यू दैट आइडलनेस इज द रूट ऑफ ऑल इविल is contradicted, थोड़ा सा strong word है, asserting that idleness free from boredom is a divine way of life that a person of noble nature aspires to, while boredom is the actual root of evil। ठीक है भाई, तो इसमें क्या ये सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है? सर इसमें वो लास्ट वाला पॉइंट मिसिंग था कि रेज हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। हाँ करेक्ट, इसमें ये मिसिंग है कि रेज हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कॉन्ट्राडिक्टेड भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ओके। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, चैलेंज्ड अगर वो बोलता, ठीक है, या डिस्प्यूटेड बोलता तो हम मान सकते थे, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टेड तो मतलब उसने प्रूफ कर दिया रॉन्ग, तो इसलिए गलत है वो। हाँ बोलिए मानव। सर नोबल नेचर भी सही कह सकते हैं क्या? क्या? अ पर्सन ऑफ नोबल नेचर एस्पायर्स टू, इसमें हाँ तो यही तो बोल रहा है कि नोबल नेचर है, लिखा हुआ है ना, अ मैन ऑफ नोबल नेचर, तो ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए वन बाहर है। द कॉमन परसेप्शन ऑफ आइडलनेस एज द रूट ऑफ ऑल इविल इज कंटेस्टेड। हाँ ठीक है, कंटेस्टेड ठीक है। आर्ग्यूइंग दैट आइडलनेस इज नॉट द प्रॉब्लम बट बोर्डम इज, एंड दैट वन हु डजंट अप्रिशिएट आइडलनेस हैज नॉट ट्रूली अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। अब I don't know, I am not very happy with this statement, has not understood the essence of humanity, he has not raised himself to the level of humanity। Are these the same thing? तो ठीक है, बाकी की चीजें ठीक है, इसको रख ली। Idleness without boredom is defended as a divine lifestyle free of evil, stating that boredom is the real root of evil, and an inability to appreciate idleness denotes a lack of understanding of humanity। सही है ये भी। सर मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। मुझे थोड़ा भी सही लग रहा है। Idleness without boredom is defended as a divine lifestyle free of evil। ग्रीक गॉड से डिवाइन लाइफस्टाइल को ले सकते हैं। कन्वेंशनल व्यू नहीं डिवाइन है। लाइफस्टाइल फ्री ऑफ इविल कह सकते हैं क्या? फ्री ऑफ इविल
डिवाइन लाइफस्टाइल फ्री ऑफ, ये इविल वर्ड वाज एसोसिएटेड विद ईदर आइडलनेस और बोर्डम, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है. स्टेटिंग दैट बोर्डम इज द रियल रूट ऑफ इविल and सर inability to appreciate idleness denotes a lack of understanding of humanity. तो वो तो कर सकते हैं नहीं नहीं एक मिनट, जैसे ये has not truly understood, lack of understanding of humanity और raising himself to the level of humanity, क्या चीज सेम चीज है? यस प्रांजल बोलिए. मतलब मैं अभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी मैंने कुछ आंसर नहीं बताया. नहीं सर, इसमें मतलब मैं एक्सप्लेनेशन देख रहा था तो इन लोगों ने बोला कि कन्वेंशनल व्यू वाला पॉइंट मेंशन नहीं है थर्ड में. कॉमन परसेप्शन. यस सर. ठीक है यार, ऐसे तो देखो ठीक है, उनका भी जो कहना है वो कहने दो उनको, आगे देखते हैं. द नोशन दैट आइडलनेस इज रिडिकुलस, ये तो चलो छोड़ दो, इसको फोर्थ को तो आराम से. सर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है सर थर्ड को लेकर के. सर वो ये है कि थर्ड में लिखा है सर एन इनएबिलिटी टू अप्रिशिएट आइडलनेस. ठीक है, और सर इसमें दिया एनीवन हु लैक्स अप्रिशिएशन. मतलब सर इनएबिलिटी और हु लैक्स में सर वो डिफरेंस नहीं नजर आ रहा. मतलब इस बेसिस पे मैंने सर थर्ड को एलिमिनेट किया. नहीं, वो तो एक ही बात है. हु लैक्स अप्रिसिएशन ऑफ इट और इनएबिलिटी टू अप्रिशिएट एक ही बात है, वो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो. देखो इसमें क्या है ना, इसमें एक तो चलो कॉमन व्यू नहीं दिया हुआ है, दूसरा इसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पर ये कैसे सही है यार? हैज नॉट ट्रूली अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, हैज नॉट रेज्ड हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी, is doing something, raising yourself to the level of humanity or understanding the essence of humanity, is it the same thing? मेरे को इसके अंदर ये डाउट है. ठीक है ना, इसलिए मैंने 3 को थोड़ा ज्यादा केयरफुली स्टडी किया, लेकिन उसमें कॉमन वाला नहीं है और उसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये भी मैं एग्री नहीं करता हूँ इससे. टेल मी, raising yourself to the level of humanity or understanding the essence of humanity, are these the same things? I don't think so. तो इसलिए मतलब मुझे तो सभी में झोल नजर आ रहा है. अब क्या करें, इसने 2 को मार्क किया, 2 मार्क करो, आगे चलो. सर 4 का सर रिडिकुलस क्यों गलत है सर? नहीं, रिडिकुलस तो कहीं नहीं बोला ना उसने. रिडिकुलस तो मतलब बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड हो गया. ठीक है ना सर, अगर रिडिकुलस छोड़ दे तो उसके अलावा सही है या? इसमें भी वही दिक्कत है, लैक अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी. देखो यार, एक बार बताओ आप मेरे को कि ये मतलब बार बार आ रहा है वही क्वेश्चन कि रेजिंग योरसेल्फ टू द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी. सी, आई कैन अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी बट आई स्टिल माइट नॉट रेज माई सेल्फ टू ह्यूमैनिटी. ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ. आई अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी बट आई स्टिल डू नॉट रेज माई सेल्फ टू ह्यूमैनिटी. कैन इट हैपन? टेल मी और नॉट. इट कैन हैपन ना? यस सर. हाँ, understanding humanity or raising oneself to the level of humanity. I understand what it takes to clear cat, but I am not able to raise myself to that level. तो अलग चीज है ना. If I am not able to raise my level, does it show that I have not understood the essence of humanity or essence of cat or essence, or I don't have deep understanding of humanity, or I lack understanding of cat? Can we say that? See, if I am not able to raise my level to the 99.99%, does it mean that I don't understand that what it takes to be at that level? These are two different things, ना? बताइए भाई, आप लोग भी सब ज्ञानी लोग हो. मतलब मैं आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड and I am trying to say कि all options are actually wrong, and this is another issue that मतलब मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो मैं इसमें यही ढूंढ रहा था कि मुझे ये मिल जाए कि person has not raised himself to the level of humanity. ठीक है, तो वो कहाँ मिल रहा है? तो वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है. That is the biggest challenge that I have with this question. कि not truly understood the essence of humanity, lack of understanding of humanity, or do not lack of deep understanding. This is different from what this fellow is saying यार, मेरे हिसाब से. अब अगर ये जिसने भी लिखा है उसने आके इस आदमी के कान में बता दिया हो कि भाई मैंने ये जो लिखा है ना इसका मतलब यही है अंडरस्टैंडिंग, तो अलग बात है, right? That this fellow, whoever has created this question, he got a visit from this guy who had written this, and he told him confidentially that बाबा ये मैं लिख रहा हूँ जो इसका तू ये मतलब समझ जाना और ये टेस्ट कर देना लोगों से और उसी को सही मार्क कर देना. सो दिस इज द प्रॉब्लम विद आई हैव विद दिस गाइस कि ये जब ये अपने रोल में अपने आप को थोड़ा ज्यादा होशियार समझ लेते हैं इस तरह की क्वेश्चन बनाने वाले, तो देन दे स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ ridiculous things, right? Raising oneself to the level of humanity and having a deep understanding, these are as per me 2 totally different things. तो ठीक है, 2 उसने मार्क किया है तो हम भी कर देते हैं और कुछ नहीं कर सकते. यस सर, एक दिन जाके इन सब में लगाना है एक. हाँ, क्या चीज? सिम कैट वालों में नहीं, देखो सब में जाके नहीं लगाने की बात नहीं है. मैं जैसे इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं होता वहां पे क्वेरी रेज करने का, मुझे तो नहीं दिखा.
लेकिन सीएल वाला जो है उसके हर सीएल के एक मॉक के बाद में वो एक जगह देता है कि यू कैन पुट योर कमेंट्स ऑन दैट क्वेश्चन। वो मैं मतलब हर बार मैं 5 से 7 कमेंट लिखता हूँ हर मॉक में, और आज तक किसी ने उसका कोई जवाब देने की उचित नहीं समझा है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। सी दे कैनॉट आर्ग्यू, दे कैनॉट, बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी पॉइंट ना, दे विल बी एक्सपोज्ड, तो वो आएंगे ही नहीं बात करने के लिए। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं मॉक्स में, इसीलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि अब देखो इसमें अब कोई कहेगा कि सर लेकिन लोगों के तो फिर भी नंबर आया था, तो ठीक है भाई, किसी ने आप में से भी कईयों ने तो 2 मार्क किया ही है ना यार, तो आपको भी नंबर तो मिले ही है ना। तो नंबर मिलना और ये चीज सही होना या नहीं होना, दैट इज अ 2 डिफरेंट थिंग। हाँ बोलिए। सर इसका बेटर वर्ड क्या होता है, अगर एसेंस की जगह क्या बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं भाई? कहाँ पे? सर जो ऑप्शन ये 2 में एसेंस बेटर वर्ड यूज एसेंस, इसका बेटर यार वर्ड। एक मिनट, आप गलत समझ रहे हो। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एसेंस, आई हैव द प्रॉब्लम विद दिस वर्ब, understanding and raising oneself. These are 2 different verbs. How can you equate these 2 verbs? Forget about rest of the things, right? Understanding something and doing something, are they same? Different है ना? Yes sir. ठीक है, चलो। All right, let's look at the first passage. ब्यूरोक्रेसीज, तो अब यहाँ पे देखो ब्यूरोक्रेसीज जो है इसमें ये पहले 2 पैराग्राफ का कोई मतलब नहीं है। थर्ड से चालू हुआ यहाँ पे कि पॉलिटिकल सिस्टम्स वेरी इन देयर कंसंट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सम पॉलिटिकल सिस्टम्स आर सेंट्रलाइज्ड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स, अदर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड विद सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट्स एक्सरसाइजिंग। तो 2 गवर्नमेंट बता दी, एक सेंट्रलाइज और एक फ्रैगमेंटेड। सेंट्रलाइज जो है जैसे यूके और फ्रांस, इसमें रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग स्टेट पावर इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड। In France, the bureaucracy is viewed as an instrument by which republicanism seeks equality and other fundamental values. Such states provide a clearer contract with bureaucracy by being more precise in defining political roles and accepting the idea of a significant discretion among career bureaucrats. तो ये एक तरीका है हैंडल करने का ब्यूरोक्रेसी को when you have a centralized system of government which is a UK and France, which is in UK and France. ठीक है, तो इसमें ब्यूरोक्रेसी को अपना ही पार्ट समझते हैं, उसकी अलग से कोई पॉलिटिकल उसका कोई पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस अलग से कुछ नहीं होता। In fragmented system, bureaucracy itself becomes a more political institution. तो उसमें अब अलग ही ये political institution बन जाती है fragmented में। The classic case of this failing to provide the political consensus is in the US, because the formal institution cannot concentrate power and thus define political ends. Bureaucracy is left with the task of building support for its own mission from bottom up rather than via a principal agent contract with political branches. In this, bureaucracy is seen as a competitor. देखो main words, main ideas समझ लो, ज़्यादा डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। Bureaucracy is seen as a competitor for political power, and politicians perceive that running for election by campaigning against the bureaucracy is a viable political strategy. The irony of this is that political principles fail to define political goals. Such shirking allows political attacks, same time creates incentive to generate their own. Rather than increasing political control, the process lessens it because bureaucracy supplies its own political legitimacy. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है ये आयरनी के ऊपर, जहां पे भी आपको ऐसे आयरनी वायरनी वर्ड मिल जाए समझ लो कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनने वाला है, क्योंकि इसके पास में और कोई क्वेश्चन बनाने के लिए है नहीं इसमें। तो हमें यहाँ पे एक आयरनी मिला था कि आयरनी ऑफ, जैसे ही मैंने ये पढ़ा था आई न्यू दैट देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग ऑन व्हाट इज द आयरनी। ओके, यू कैन ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट इट। तो आयरनी क्या है इसकी कि ये जो रादर देन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल इट लेसन्स इट, दिस प्रोसेस, दिस इज द आयरनी। तो एक क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे। Among the nascent democracies, अब ये emerging democracy में आ गया। Argument is made that democracy is enhanced by creating more authority for government closer to the people, local government। तो मतलब जो गवर्नमेंट स्टेट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट होती है उनको ज़्यादा पावर क्रिएट करते हैं via fragmented local government with each developing unique set of services. Individual citizen can vote with their feet to select the community that best meets. However, argument is implicit the local have capacity to provide effective. Without such capacity, decentralization is as likely to bring corruption and thus undercutting support for democracy। ऐसा कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है, तो हम समझ गए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। नेसेंट मीन्स एमर्जिंग, नेसेंट मीन्स जो अभी कमिंग अप, ओके, एमर्जिंग जो अभी नई नई आई है, ओके, नेसेंट मीन्स समथिंग दैट हैज बीन बॉर्न रिसेंटली। ऑलराइट, लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। Which of the following describes what the passages mainly about? This we have discussed in detail कि इसमें डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स में किस किस तरीके की ब्यूरोक्रेसी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम्स आना और ब्यूरोक्रेसी आना, तो वो आपको इन दोनों में ही आया है, राइट। तो इसलिए सेकंड इज द राइट आंसर।
किसी को ये भी लग सकता था शायद ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स इन डेवलप्ड एंड नेसेंट डेमोक्रेसी, ऐसा लग रहा था क्या? और नहीं लग रहा था तो क्यों नहीं लग रहा था, बताओ क्यों नहीं लगना चाहिए? हाँ सर, लेकिन फिर व्हाई इज सर दिस? बट फिर सेंट्रलाइज्ड जो सेंट्रलाइज्ड यूके की बात, वो हाँ, पॉइंट कहाँ जाए? डेवलप्ड के अंदर दो दो है कैटेगरी है ना, एक सेंट्रलाइज्ड है और एक फ्रेगमेंटेड। और एक फ्रेगमेंटेड है. So since we cannot represent both have different bureaucratic structures, therefore this is wrong. Okay, and इसके अंदर तो political system की बात ही नहीं हुई है, and इसके अंदर hierarchies उसकी कुछ भी नहीं बताई है. तो ये clear cut question, no problem in this. Based on the passage, all of the following accurately reflect the relationship between politics and bureaucracy except in centralized political system bureaucracy in a legal part. ये दिया हुआ है, यस सर, ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में। में यस, तो दिस इज गिवन. ब्यूरोक्रेसी बिकम्स पॉलिटिकली एक्टिव इन फ्रैगमेंटेड, ये भी दिया हुआ है. यस सर, ये भी दे रहा है। इनका अपना पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, ये दिया हुआ है. ये ब्यूरोक्रेसी टू जनरेट देयर ओन पॉलिटिकल सपोर्ट, तो ये अपना पॉलिटिकल सिस्टम बना लेती है, तो दिस इज ऑल्सो गिवन. इन एमर्जिंग डेमोक्रेसीज डिसेंट्रलाइजेशन कैन अंडरमाइन द सपोर्ट, दिया हुआ है. यस सर, हाँ दिया हुआ है, Yes, लास्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है. Decentralization is as likely to bring corruption and dissatisfaction, thus undercutting support for democracy. तो ये लिखा हो ना, decentralization can undermine the support for democracy. तो ये दिया हुआ है, करेक्ट आंसर फोर्थ. देखो ये जो कॉम्पिटिटर फॉर पॉलिटिकल पावर, ये हर जगह नहीं है, ये कहाँ पे है? ये डिसेंट्रलाइज में. ओके, दिस इज इन डिसेंट्रलाइज्ड, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग. एग्रीड? So this was also okay question, no problem. Which of the following statement most accurately capture, ये आ गया आयरनी, देखिए आयरनी आ गया, और आयरनी का आंसर हमने देख लिया था यहाँ पे कि आयरनी का आंसर ये है कि rather than increasing it lessens it. तो ये कहाँ पे दिया हुआ है इसमें? In there as the bureaucracy generates its own political support, it lessens the political control that was intended to be exerted by the political principles. तो इसमें आपको सेकंड से कंफ्यूजन हो सकता है. In their attempts to exert, in their attempts to exert greater control over the bureaucracy, politicians ironically reduce their influence by politicizing it. देखो ये इसमें गलत है ना, ये गलत है कि politics, ये जो इसमें ये बताया ना कि as the bureaucracy generates its own political support, और यहाँ बताया politicizing. तो these are two different things. कि ये जो politicians हैं ये क्या करते हैं कि इनका पॉलिटिकल सपोर्ट एनेबल कर देते हैं, और इसलिए उनका कंट्रोल कम हो जाता है. पॉलिटिसाइज करने से नहीं हो जाता है. पॉलिटिसाइज करना इज रॉन्ग वर्ड टू यूज हियर, राइट? ये देखो आप यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है. रादर देन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कंट्रोल, द प्रोसेस लेसन्स इट बिकॉज द ब्यूरोक्रेसी सप्लाइज इट्स ओन पॉलिटिकल लेजिटिमेसी. ठीक है, तो ये आपको थर्ड में कैप्चर हुआ है, नॉट इन सेकंड. तो सेकंड को आप देख सकते थे, थोड़ी देर मैंने भी कंफ्यूज था थोड़ा सा दोनों में, लेकिन देन थर्ड वाज द करेक्ट आंसर. No doubt in this. Okay, it's a clear answer. Okay, आ गया हमारा फेवरेट क्वेश्चन. Which of the following sets of phrases best encapsulates the ideas? तो अब आप देखिए, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम्स तो होना ही चाहिए दोनों में, कि नहीं होना चाहिए? यस सर, यस सर। तो फोर्थ में है क्या? चाहिए. नहीं है. इसमें है क्या? नहीं है. इसमें है क्या? नहीं है. ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, डिसेंट्रलाइजेशन, politicization of bureaucracy. ठीक है, तो one looks to be सर इसमें सर सेकंड में मुझे डाउट आ रहा था. जैसे सर पॉलिटिकल सिस्टम्स की जगह सर सेंट्रलाइज और फ्रेगमेंटेड दे दिया. ठीक और है, सर शुरुआत में डेमोक्रेसी की बात करी थी, मॉडर्न डेमोक्रेसी की. पर ब्यूरोक्रेसी की बात कहाँ हुई है इसमें? ब्यूरोक्रेसी की तो नाम ही नहीं है इसमें कहीं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ही ब्यूरोक्रेसी है पूरे पैसेज में. नहीं मानोगे आपकी बात को? ब्यूरोक्रेसी तो है ही नहीं ना यहाँ पे. चलो आपकी बात होती है मैंने. यस, मेरे भी ऑप्शंस बहुत इजीली एलिमिनेट हो गए थे क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ इसी में. हाँ, ब्यूरोक्रेसी तो है ही नहीं ना, सिर्फ इसमें है. एंड सर फर्स्ट पे ही होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले ही आया है. हाँ, ब्यूरोक्रेसी सबसे पहले ही आया है, करेक्ट. यस तनुज. सर ये थर्ड वाला जो सेकंड का पॉलिटिसाइजिंग था सर, एक बार मेरे को ढंग से समझ नहीं आया ये वाला, इसका क्या चीज़ मतलब. समझ नहीं आई? सर जो थर्ड क्वेश्चन का पॉलिटिसाइजिंग इट वाला जो पॉइंट था, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज था सेकंड थर्ड में.
तो मुझे वो पॉइंट सर समझ नहीं आया, मतलब ये वर्ड का एग्जैक्टली कैसे इसने यूज किया है। देखो, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे वांट टू हैव अ better control on bureaucracy, right? But here, here what has happened is that उन्होंने जिस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी को खुद को एनेबल कर दिया पॉलिटिकली लेजिटिमेसी के लिए, तो उस चक्कर में उनका कंट्रोल खत्म हो गया या कम हो गया। तो ये आप जो पॉलिटिसाइजिंग वाली बात कर रहे हो, किसी चीज को पॉलिटिसाइज करना मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि यार आप तो जबरदस्ती पॉलिटिसाइजिंग कर रहे हो, यार आप तो जबरदस्ती पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो क्या वो और ये वर्ड सेम है क्या? एज द पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी जनरेट्स इट्स ओन पॉलिटिकल सपोर्ट, आर दीज टू द सेम थिंग्स? नहीं है ना। दिस इज रॉन्ग वर्ड। पॉलिटिसाइज करना तो मतलब किसी भी इशू को पॉलिटिकल बनाना। यार आप जबरदस्ती पॉलिटिसाइज कर रहे हो यार आप, तो वो थोड़ी बोलना चाह रहा है वो, राइट? तो इसलिए गलत। चलो, ओके, यस मानव। सर जैसे थर्ड की जो फर्स्ट ऑप्शन में द ब्यूरोक्रेसी आयरॉनिकली स्टेप्स इन, तो ये भी लैंग्वेज गलत ही है। अगर आयरनी पूछी तो फिर ऐसे नहीं लिख सकते ना। यार देखो, उसका कोई मतलब ही नहीं ना, मतलब उस सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं। जस्ट बिकॉज वहाँ आयरनी या आयरनिकली लिख दिया, उसको क्यों इवैल्यूएट कर रहे हो? ओके उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको इसमें क्या डाउट होता? ये तो बहुत क्लियर एलिमिनेशन था। हाँ सर, वो मुझे थोड़ा बहुत दूसरी डाउट आ रहा नहीं था। नहीं, देखो आपको क्या करना चाहिए, जब ये जो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं ना, उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपको वहीं मिल जाएगा। आप उसको जाके एक बार दोबारा पढ़ो, यू विल गेट द आंसर एंड यू कैन मैच इट विद द ऑप्शन गिवन एंड वन ऑफ देम विल यू विल फाइंड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लैंग्वेज होगी, बट एक से मिल जाएगा आपको। तो ये कह रहा है व्हेन इंस्टीट्यूशन फेल टू सेंट्रलाइज पावर एंड सेट पॉलिटिकल गोल्स। यार फेलिंग टू सेंट्रलाइज पावर वाली तो कोई बात ही नहीं हुई है पूरे पैसेज में। दो टाइप की बात हुई है, एक सेंट्रलाइज होती है डेमोक्रेसी, एक फ्रेगमेंटेड या डिसेंट्रलाइज होती है। तो फेल टू सेंट्रलाइज ऐसा कुछ है ही नहीं पैसेज में कहीं पे भी, है ना? इसलिए कोई मतलब नहीं। ओके, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्विकली मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो कई सारे पॉलिटिक्स होती है, नेक्रो पॉलिटिक्स, मतलब वो डरा धमका, मतलब वो ऐसे पॉलिटिक्स जहाँ पे मार मूर के लोगों को अपने कब्जे में किया जाता है। ओके, you are wielding power by contemporary power is the condition of wielding death, being able to apply it, withhold and prolong it. That means you are आपकी जो बात नहीं मान रहा है उसको उठा के मार दो आप, राइट? सो दैट्स द काइंड ऑफ नहीं, चाइना वाइना देखो, ये अभी लेट अस नॉट गेट इनटू द एग्जांपल कि कोई कंट्री है नहीं है ऐसी, अभी हमें नहीं पता। दिस हैज लेड टू द क्रिएशन ऑफ डेथ वर्ल्ड्स इनहेबिटेड बाय लिविंग डेड। मतलब इस तरह की जो सॉवरेन कंट्रीज होती हैं, सॉवरेन मतलब जो कंट्री होती है जो कि नेक्रो पॉलिटिक्स में इंडल्ज करती है, वहाँ पे लोग जो होते हैं वो लिविंग डेड कहलाते हैं। बट डेथ एंड पॉलिटिक्स आर टेंगल्ड इन कॉम्प्लेक्स वेज। ये पैलेस्टीनियन सुसाइड बॉम्बर का कोई एग्जांपल लिया है। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मार्टिरडम प्रोवाइड्स अदर एग्जांपल। बट द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाट यूटिलिटेरियन पॉलिटिकल एंड डज डेथ सर्व। तो हेगल ने कहा है कि देखिए, वॉलंटरी एनकाउंटर्स विद डेथ को नॉन निहिलिस्टिक, ये नॉन निहिलिस्टिक है और ये एसेंशियल एलिमेंट है सब्जेक्ट फॉर्मेशन के। कन्फ्रंटिंग डेथ इनएविटेबली ट्रांसफॉर्म द सब्जेक्टिव इफेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग। तो अगर आपने डेथ कन्फ्रंट किया है तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा। इन इस ट्रीटीज, वॉलंटरी डेथ कैन ओवरकम डेमोनिक कंपल्शन ऑफ दिस ड्राइव द ऑपरेसिव फोर्सेस। ठीक है, when everyday life is pervasively aimed by oppressive forms of imposed death, can death itself be appropriated and turned into an act of resistance and freedom? तो जहां आपको हर वक्त मौत आपके सिर पे मंडरा रही है, वहां आपने खुद जाके मौत को गले लगा लिया, तो कैन इट बी एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्रीडम? मतलब कि आपको वो हर समय मारने की धमकी दिए जा रहे हैं, तो आपने खुद ही मौत को गले लगा लिया, तो कैन इट बी कॉल्ड एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस? तो ये जो बानू बारगू कोई है, ये एक ऑल्टरनेटिव दे रहा है टू सॉवरेन नेक्रोपॉलिटिक्स, दैट इज नेक्रो रेजिस्टेंस। यस, आपने अगर खुद को मार लिया तो दैट इज नेक्रो रेजिस्टेंस। What is striking is that this form of resistance overlaps with Abrahamic martyrdom. Through the example of imprisoned Marxist justice, we show that how death and its attention can assume a theological character. तो आप अगर मर गए और उसके बाद रिचुअल्स कर लिए आपके लोगों ने, तो ये एक रिलीजियस चीजें हो जाती है, इवन अमंग नॉन रिलीजियस। मतलब नॉन रिलीजियस भी आप लोग हो तो आपको ये रिलीजियस लगेगा। एंड दिस इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर नेक्रो रेजिस्टेंस, एंड इट हैज रिजल्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ मार्क्सिज्म, sacrificial Marxism, which involved martyrdom being systemically appropriated as central value and transformed into a vehicle for all of this. So what he's trying to suggest is कि
मतलब पैसेज का आर्गुमेंट सिंपल है, सिंपल मतलब कि जितना भी समझ पाए कि नेक्रो पॉलिटिक्स अगर कोई कंट्री करती है जहाँ पे वो डरा धमका के रखती है, मारने की वो देती है, तो वहाँ पे लिविंग डेड लोग रहते हैं। और ऐसे में डेथ का क्या मीनिंग है, तो उसने कहा भी देखिए डेथ का मीनिंग है इसमें वो, अगर आप वो आपका सब्जेक्ट फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, और इफ यू देन गो एंड एम्ब्रेस डेथ देन इट विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड फ्रीडम, तो इसको नेक्रो रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये एक तरह से रिलीजियस रिचुअल हो जाता है इवन इन नॉन रिलीजियस पीपल, एंड दिस इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन कि एक रिलीजन जैसा आप उसको एक फ्लेवर दे दो, ठीक है। और उसका कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे उन्होंने। When is such expression appropriate? It is preferable when people are oppressed by conditions that appear to stretch across time. A web of three-dimensional violation and violence, ending a territorially endless and temporarily eternal regime by any means. तो ये कब है, जब कोई अगर इस तरह की regime कंटिन्यूअसली चले जा रही है, खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही, तो उस टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा बोल रहा है। दिस कैनॉट बी डिसमिस्ड एज सिंपली डेस्परेट एंड फ्यूटाइल। अब कोई बोल सकता है कि यार ये तो क्या है, आप और कुछ नहीं कर सकते तो मर ही गए, लेकिन बोल रहा है ऐसा नहीं है भाई। Not for Fanon, Bargu, Kandahar insurgents, those martyrdom became an expression of dissentious politics. तो ये ऐसा नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये आपका स्टेटमेंट है। डेथ में नॉट बी ओनली लॉजिकल बट रेवलेटरी। तो आई होप कि पैसेज जितना भी समझ में आ गया, ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है, लेकिन हाँ इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग यू विल गेट अ लिटिल डिप्रेस्ड इस तरह की बातें पढ़ के, और अच्छा खासा मूड थोड़ा खराब हो जाता है। यस प्रांजल। सर ये पैसेज मतलब मैंने तो छोड़ दिया, मतलब अच्छा सेट सिलेक्शन टाइम पर भी मतलब छोड़ दिया था, बट आप जब एनालिसिस करने बैठा तो मेरे को तो कुछ तब भी कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने लिखा कि चलो गूगल पे देखते हैं। सर ये एऑन से उठाया था इसने, 3700 वर्ड का आर्टिकल है, और उसमें से लास्ट का जो पार्ट है ना, खाली 4 पैराग्राफ, वो लाके दिया है इधर। करेक्ट। सर ये कैसी प्रैक्टिस है, मतलब this is what I say, ridiculousness at its height। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ऐसे में सिर्फ सी द सिल्वर लाइनिंग इन सच पैसेजेस ओनली कि क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। जैसे अब आप ये देखेंगे कि बेस्ड ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ द टर्म लिविंग डेड रेफर्स टू, तो लिविंग डेड कौन से हैं भाई, ये सॉवरेनिटी कंट्री है, इसमें डेथ वर्ल्ड और लिविंग डेड, जो लोग वहाँ के सिटीजन है वो लिविंग डेड है। तो इनहेबिटेंट्स ऑफ अ सॉवरेन नेक्रोपॉलिटिकल नेशन, दिस आर द लिविंग डेड। बस इसमें डेथ पेनल्टी कहीं नहीं आई, और डाइड मर गए ऐसा भी नहीं है। अभी तो मरने वाले तो नेक्रो रेजिस्टेंस में कहलाएंगे ना, वो तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में तो इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ है, राइट। तो ये हो गया। हेगल ने कहा है कि ये सब्जेक्ट फॉर्मेशन मतलब आपके आइडेंटिटी फॉर्मेशन और आपकी जो ये है उसको शेप कर रहा है, तो वो सिर्फ फोर्थ में दिया हुआ है। वॉलंटरी एनकाउंटर्स आर मीनिंगफुल एंड शेप वंस आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट फॉर्मेशन मतलब क्या था वहां पे? सब्जेक्ट फॉर्मेशन मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी फॉर्म, अगर लोग मरते हुए किसी को देख रहे हैं, वॉलंटरी एनकाउंटर्स विद डेथ, जैसे ये आप यहाँ पर बताया इसने कि जैसे आपकी सोसाइटी है उसमें कन्फ्रंट कर रहे हैं डेथ, वेदर एज इंडिविजुअल और कलेक्टिव, इनएविटेबली ट्रांसफॉर्म्स द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द लिविंग। तो जो लोग लिविंग हैं उनके आइडेंटिटी और उनके जो एक्सपीरियंस है उसको शेप कर रहा है ना वो, कि आपके सामने अगर लोग मर रहे हैं तो बेसिकली आपको उससे कुछ ना कुछ आपकी आइडेंटिटी पे, आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके परसेप्शन पे कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है, वही बता रहा है। सर इसमें थर्ड वाला क्यों नहीं हो सकता? सर थर्ड वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? चूजिंग टू फेस डेथ इज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट, देखो पांगू का ये एक मिनट हाँ, वो कौन कह रहा है कि एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है? अभी ये हेगल वाले पैसेज में तो एंड में क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, वो क्वेश्चन रेज कर रहा है यहाँ पे, देखो कैन डेथ इटसेल्फ बी अप्रोप्रिएट एंड टर्न इनटू एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। उसका जवाब कौन दे रहा है? बानू बारगू, राइट। ये कह रहा है कि हाँ आप बात सही कर रहे हो, इट कैन बी एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या ये मिस्टर हेगल कह रहे हैं? नहीं कह रहे हैं, इसलिए ये गलत, ठीक है। ये अगर लिखा होता है यहाँ पे कि बानू बारगू सेज दिस, देन ये सही है, लेकिन वहां पे हेगल चल की बात क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई 3 इज रॉन्ग। ओके सर। Which of the firmest argument of third paragraph? थर्ड पैराग्राफ में तो यही है कि ये नेक्रो रेजिस्टेंस जो है ये एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीडम है। तो नेक्रो रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव, अरे भाई इफेक्टिव, ये तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। हाउ डेथ बिकम्स अ पॉलिटिकल टूल ब्लेंडिंग रिलीजियस मार्टिरिज्म इवन, यस बिल्कुल ठीक बोल रहा है।
सेपरेशन ऑफ थियोलॉजी बिल्कुल उल्टा। देखो कितने इजी ऑप्शन बनाए इसमें। वो कह रहा है कि थियोलॉजी इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन, ये देखो आप, इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन, और यहाँ पे लिख रहा है कि सेपरेशन ऑफ थियोलॉजी। तो इस तरह के जो पैसेज बनते हैं इसमें, क्योंकि ये देखो जिन्होंने भी ये उठाया वहां से, उसको भी उतना ही समझ में आएगा जितना हमें समझ में आएगा, तो वो कौन सा ऐसा महान क्वेश्चन इसमें बना के दे देगा। वो तो सीधे सीधे उसके पास में ज्यादा कुछ तीर बचे ही नहीं, वेपन बचे ही नहीं, तो उसने उल्टा करना शुरू कर दिया। ये इफेक्टिव है तो इनइफेक्टिव लिख दिया, उसको नेसेसरी कंडीशन बताया तो उसको सेपरेशन बता दिया उसने, है ना, इजी एलिमिनेशन दे दिया उसने। बार्बू क्रिटिसाइज द एडॉप्शन ऑफ मार्टिनिज्म एज एथनो पॉलिटिकल वैल्यू फॉर आइडियलिज्म। ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें 2 हो गया, राइट। 4 पॉइंट दे तो रखा है उसने पास। तो उस पैरा के लास्ट में ये लाइन दे तो रखी है, नो पॉलिटिकल वैल्यू कहा दिया हुआ ट्रांसफॉर्म, लेकिन ये क्या वो है क्या, मतलब मेन आइडिया नहीं ना इसका। हाँ यस, वो नहीं। मेन आइडिया नहीं है इसका, है ना। क्रिटिसाइजेस दी, एक मिनट, बार्गू ने इट हैज रिजल्टेड इन द सैक्रिफिशियल व्हिच इन्वॉल्व्स बीइंग, क्रिटिसाइज कहाँ कर रहा है इसको, देखो गलत है ना। दिस सैक्रिफिशियल मार्क्सिज्म इन्वॉल्व्स मार्टिडम बीइंग सिस्टमैटिकली एप्रोप्रिएटेड एज दिस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बार्गू क्रिटिसाइजेस, तो ये गलत है ना, ये रॉन्ग। Okay, which of the following statement contradicts the arguments? The power to control life and death is not an essential attribute. भाई ये तो essential, देखो फिर वही किया इसने। Not an essential attribute of a sovereign entity. Non-religious individuals can incorporate aspects found in religious, ये तो दिया हुआ है। Under extreme death is a meaningful and necessary, ये भी दिया हुआ है। Necro resistance relevant in political discourse has no place, no. It has a place, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है इसको, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ए क्यों गलत है, पावर टू कंट्रोल लाइफ एंड डेथ इज नॉट एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ अ सॉवरेन एंटिटी, ये क्यों गलत है। तो ऐसा केस है ना, नेक्रोराइज इसमें देखो सॉवरेन एंटिटी जो है ना, ये पर्टिकुलर सॉवरेन एंटिटी की बात करें ना, सारे सॉवरेन एंटिटी की बात थोड़ी कर रहे हैं। भाई यहाँ पे अगर लिख दिया होता कि नेक्रो सॉवरेन एंटिटी, फिर तो ये सही हो जाता आंसर, क्योंकि नेक्रो सॉवरेन एंटिटी तो वो है जो कि पावर ऑफ कंट्रोल करता है, लाइफ और डेथ को पावर रखता है वो, राइट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये सॉवरेन एंटिटी लिखा हुआ है इसलिए गलत है। अगर यहाँ पे नेक्रो पॉलिटिक्स वाली लिखता कि जहाँ पे नेक्रो पॉलिटिक्स होती है, जैसे ये इसमें पहला वाला क्वेश्चन था ना, नेक्रो कहाँ गया, हाँ, सॉवरेन नेक्रो पॉलिटिकल यूनिनेशन, अगर यहाँ पे लिखा होता इसमें कि सॉवरेन नेक्रोपॉलिटिकल एंटिटी, फिर ये सही हो जाता है, क्योंकि सॉवरेन नेक्रोपॉलिटिकल एंटिटी में तो पावर टू कंट्रोल लाइफ एंड डेथ होती है ना उनके पास में, करेक्ट। यस सर, गुड। चलो तो आज एक नई चीज सीखी हमने, नेक्रोपॉलिटिक्स एंड नेक्रो रेजिस्टेंस। एवरी डे देयर इज अ न्यू लर्निंग। ओके, नाउ वी गो टू हॉकिंग रेडिएशन। तो हॉकिंग रेडिएशन में ये क्या कह रहा है इसमें कि ये जो क्वांटम थियरी है, तो हॉकिंग was puzzled by features of this radiation or precisely lack of features. तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक फीचर है that something always happens. If you add up the probabilities for anything, you will find the total probability is 1. This can be formulated statement about information. If one knows everything, one can know about a system at a time, then one know everything about it at later times. मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन कहीं जाती नहीं है, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज देयर, इट डज नॉट गेट क्रिएटेड, इट डज नॉट गेट लॉस्ट, दैट इज द बेसिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। लेकिन रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक होल्स में ऐसा नहीं है, दैट इज प्रिसाइजली व्हाई हॉकिंग रेडिएशन जो है ये एक बड़ा पजलिंग चीज है, राइट। तो दीज आइडियाज में भी अनफेमिलियर बट इज वर्थ एलैबोरेटिंग। ये लॉटरी टिकट विकेट की कोई बात कर रहा है, छोड़ो। What does it mean for information to disappear? Of course, we all forget things. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो forget होने से वो चली गई, लूज हो गई, कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, कभी ना कभी याद आएगी वो। For a system like a collapsing star, there is a lot of information. Thanks to Hawking, you know, it forms a black hole and then slowly evaporates, emitting radiation. तो एक collapsing star जो होता है वो black hole बना देता है और evaporate हो जाता है और उसमें से radiation निकलता है। Information that was contained in initial star had been reduced to just the temperature of a warm body. He argued that information was simply lost. Quantum mechanics breaks down. तो अब इंफॉर्मेशन लॉस हो गया तो ये तो गड़बड़ हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो गई यहाँ पे।
तो इन्होंने इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश की बाय थॉट एक्सपेरिमेंट. सम हैव सेड दैट वन हैज टू रीडू क्वांटम मैकेनिक्स टू रिजॉल्व हॉकिंग्स पैराडॉक्स. हॉकिंग पैराडॉक्स क्या है कि जो रेडिएशन इंफॉर्मेशन कैसे लूज हो गई, जबकि क्वांटम थ्योरी कहती है कि कोई इंफॉर्मेशन लूज हो नहीं सकती. तो कुछ लोग स्केप्टिकल हैं. परहैप्स इवेपोरेशन लाइक अ लंप ऑफ एश. Surely the law of quantum mechanics don't break down when an object burns. In that case, resolution of the puzzle is not exactly for black body but outgoing photon. Answer could not be so simple. तो इन्होंने पता लगाया कि यार आंसर इतना सिंपल नहीं है इसको एक्सप्लेन करना. तो हो सकता है कोई नई चीज आ गई हो, जैसे न्यूटोनियन फिजिक्स को आइंस्टाइन का जो ये आया था क्वांटम, इसने क्वांटम और जनरल रिलेटिविटी ने अपटर्न कर दिया था. तो वैसे ही हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई नई चीज आने वाली है, लेकिन उसको ऐसा नहीं हुआ क्योंकि एक नई चीज आ गई, स्ट्रिंग थियरी. तो उस स्ट्रिंग थियरी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया. इट रिप्लेसेस द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स. दिस हैज प्रोवाइडेड एटलीस्ट अ पार्शियल रेजोल्यूशन. Two theorists were able to understand the temperature in quantum mechanical terms. In other words, the information, at least for these, somehow survives evading Hawking's paradox. All right. So Hawking paradox, uska explanation was given in this. It can be inferred from the first paragraph that Hawking radiation puzzled Stephen Hawking because क्या answer है इसका? It carried no information. It carried no information, right? So ये तो ठीक था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था. हाँ सर. Which of the following best describe the nature of information? So information can be transferred, no, it can be completely lost, no subject to change नहीं, it cannot be created or destroyed. तो ये भी ठीक है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है. All of the following are aspects. सर लास्ट वाले में थर्ड वाला ऑप्शन सब्जेक्ट टू चेंजेस कहाँ लिखा हुआ है? मे नॉट बी प्रिजर्व. ये तो उल्टा है. देखो क्वांटम मैकेनिक्स में इंफॉर्मेशन चेंज नहीं, मतलब मे नॉट बी प्रिजर्व मतलब इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी. ये बोल रहा है ना कि इट मे बी लॉस्ट. तो ऐसा थोड़ी, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी लॉस्ट, है ना. ये बोल रहा है इंफॉर्मेशन, इफ वन नोज एवरीथिंग कैन नो अबाउट एट लेटर टाइम, दैट मींस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी लॉस्ट. ओके सर. इंफॉर्मेशन वाज सिंपली लॉस्ट यहाँ पे, है ना. Contradicts both general relativity and quantum mechanics. Yes, it intersects both. Yes, it can be explained without अब देखो इसमें करेक्ट आंसर तो चलो 3 है, लेकिन ये मैं आई एम नॉट 100% एग्री दिस. विदाउट कॉन्ट्रडिक्शंस ऐसा बोल सकते हैं क्या? इसने ये यहाँ से उठा लिया है, इसने इसको यहाँ से उठा लिया है कि in other words the information at least for these somehow evading Hawking's paradox. पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इसको 100% हम समझ सकते हैं. इसने कहा है कि इट एटलीस्ट अ पार्शियल रेजोल्यूशन, राइट. पार्शियल मतलब विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं क्या? पता नहीं. ठीक है, मतलब वही अब सब बहुत देर हो गई, इन्होंने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की तो करनी तो जरूरी है ना, तो वो कर दी. यस मानव. सर इसका मतलब क्या है? हॉकिंग रेडिएशन इंटरसेक्ट्स बोथ जनरल रिलेटिविटी एंड क्वांटम थ्योरी. मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन पे है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे इसमें. समझ में नहीं आ ये रहा. नहीं, मतलब बेसिकली क्या है, ये रहा. सम हैव टू वन हैज टू रीडू क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी टू रिजॉल्व हॉकिंग्स पैराडॉक्स. मतलब कि ये दोनों के इंटरसेक्शन पे है. मतलब ये दोनों एक ही बात बोल रहे हैं. मतलब ये एक तरह से एक ही बात बोल रहा है कि दोनों कनेक्टेड है. See, these are Hawking radiation is connected to both of these, is what he say. सर इसने थर्ड वाले को कैसे मतलब बोला कि वो मतलब हॉकिंग रेडिएशन और इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी में कोई लिंक नहीं है ना. हॉकिंग रेडिएशन शायद स्टार्टिंग में दे रखा था. क्या, कहाँ पे? फर्स्ट. सर टोटल क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एस्पेक्ट्स ऑफ हॉकिंग्स पैराडॉक्स एक्सेप्ट. तो क्या ये हॉकिंग पैराडॉक्स का एस्पेक्ट है क्या? कहाँ दे रखा है? This did not seem to be the case. यहाँ दे रखा है ना. This did not seem to be the case. If you add up probabilities for anything that may happen, you will find this out. This can be formulated statement about information. If one knows everything, but this did not seem to add up for.
मतलब कि आपके हिसाब से ये सही है, दिया हुआ है। हाँ मैंने सेकंड मार्क करा था। सर मुझे 1 और 3 तो एलिमिनेट हो गए थे, तो सेकंड तो मुझे 4 लग रहा था। बट सिर्फ 3 में डिस्प्यूट का बात नहीं किया है ना, तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी टू बी कंजर्व्ड एट 1। नहीं, लेकिन ये लिखा है ना यहाँ पे कि दिस डज नॉट सीम टू बी द केस, ये लिख रहा है ना, दिस डज नॉट सीम टू बी केस मींस डिस्प्यूट्स। यस सर, एंड सर पैराडॉक्स का एग्जांपल वो 4th पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो अगर क्वेश्चन वहां से पूछा है तो आंसर भी वहीं से आनी चाहिए थी ना, लेकिन वो आंसर बता रहा है फर्स्ट से। छोड़ो, लीव इट, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट इवन एग्री विद दिस। इसने इसको एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है, मैं तो इसको भी नहीं मान रहा हूँ। विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन मतलब क्या है, वहां बोल रहा है एटलीस्ट अ पार्शियल रेजोल्यूशन, यहाँ पे तो बोल रहा है कि छाती ठोक के बोल रहा है, तो इसको एग्री कर रहे हो क्या आप? नो सर दोनों में वही तो कंफ्यूजन था ना। तो इसलिए छोड़ दो इसको, लीव इट, दिस इज अ यस रिडिकुलस सर। क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज द इवेपोरेशन ऑफ ब्लैक होल कंपेयर्ड टू द बर्निंग ऑफ अ लॉग? ये तो ठीक है। ये वाला इजी क्वेश्चन था सर। हाँ, नहीं इसमें भी आपको किसमें किसमें सेकंड और थर्ड में कुछ कंफ्यूजन हुआ था क्या? यस सर, हुआ था मेरे को, हुआ था सर। थर्ड को इवैल्यूएट करो ना। Both can result in a loss of detailed information about the initial state. Both emit radiation and result in the destruction of initial material. सर लॉग में रेडिएशन का क्या सेंस बनेगा? मैंने तो फर्स्ट मार्क करा था। फर्स्ट क्यों? फर्स्ट में भी डाउट। फर्स्ट ऑफ लॉग में रेडिएशन, वहाँ पे रेडिएशन का शायद है, वहाँ पे लॉक बताया हुआ। देखते हैं, चलो कहाँ है। So in first paragraph, first line, it is given Hawking radiation possible through though मतलब always and then so in first line it is written brought general relativity and quantum theory together, and Correct. so in that line it is given it contradicts. So first थर्ड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। नहीं, कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? देखो इसमें ये इंटरसेक्ट पे किसी को डाउट था ना, तो वो वहां से आ जाएगा। Yes, sir. इस पे डाउट था ना, वो वहां से आ गया वो। एनीवे वो अभी तो हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे अब हम अगर ये थर्ड वाले को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि एमिट रेडिएशन है क्या, when an object burns, in that case the resolution of the puzzle is that outgoing radiation is not exactly that of a black body. Radiation तो है उसमें भी। यस सर, मैंने भी वही कंफ्यूज हुआ था। बर्निंग ऑफ अ लॉग में भी रेडिएशन तो है ना? यस यस सर। तो बोथ एमिट ब्लैक रेडिएशन। बॉडी की बात हो रही है उधर, क्या जो रेडिएशन है ना, वो रेडिएशन ब्लैक बॉडी के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अरे भाई, आउटगोइंग इज नॉट एग्जैक्टली दैट ऑफ अ ब्लैक बॉडी, बट कोई रेडिएशन तो है ना भाई। ये कह रहा है कि perhaps the evaporation of a black hole is like the lump of ash from the burning of a log. Surely the law of quantum mechanics don't break down when an object burns. In that case, the resolution of the puzzle is that the outgoing radiation is not exactly that of a black body, but subtle connection. मतलब ये black body मतलब black hole की बात कर रहा है। हाँ सर, ब्लैक होल होता है एक ब्लैक बॉडी। Okay, but it was soon realized. ठीक है, तो रेडिएशन both can emit radiation, result in the destruction of initial material और loss of detailed information about the initial state. तो ठीक है, इसमें B looks to be a better answer. तो B के साथ में जा सकते हैं इसमें, ठीक है, बट स्टिल बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है ये। लॉग में तो मटेरियल ही होगा ना, लॉग में इंफॉर्मेशन तो हो नहीं सकती। यस सर, वही भी कंफ्यूजन था मेरा भी। मतलब दोनों ही सही है, पर थर्ड पे लग रहा दोनों ही, हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क डालो, ठीक है, नॉट एबल टू रिजॉल्व, फाइन। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पैसेज। डिजिटाइज्ड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, नॉलेज वर्कर्स, वी रन द रिस्क ऑफ बिकमिंग मटीरियली इलिटरेट। तो मटीरियली इलिटरेट मतलब हम सिर्फ अपना साइट और विजुअल एनालिसिस यूज करते हैं, बाकी के टूल्स यूज नहीं करते, डिप्लॉइंग आवर आईज, टच एंड ऑल ऑफ दिस। हाउ माइट वी लिंक विजुअल, हैप्टिक एंड टैसिट नॉलेज ऑफ मटेरियल? तो एक किसी भी मटेरियल के बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, तो अगर हम सिर्फ इमेजेस देख रहे हैं तो हम उसके बाकी की चीजें अप्रिशिएट नहीं करते। फॉर्मल विजुअल एनालिसिस privileges appearance and often rests on value systems. Such an emphasis leads to hierarchy, move outwards. This approach will mark their products metropole in interpreting. तो स्टाइल और फसाड से पीछे आपको पीछे देखना चाहिए, उसके अंदर घुसना चाहिए आपको। पर्टिकुलर मीडियम, कॉन्गो वीवर्स की बात की है इसने। वंस मटेरियल आर हार्वेस्टेड, आर्टिजन ट्रांसफॉर्म दीज
through interrelated steps of fabrication that can be called realization. Skilled work takes place over considerable. Technology has improved and present offers the most advanced. Paying attention to the tacit knowledge questions this progressive model. तो यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव मॉडल बताया कि टेक्नोलॉजी हर चीज में बेटर होती चली जा रही है, राइट, एंड प्रेजेंट ऑफर्स द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ वर्कमैनशिप. लेकिन इसको चैलेंज किया है. पेइंग अटेंशन टू टैसिट नॉलेज एंड डेक्स्ट्रस एक्शंस ऑफ पास्ट कल्चर्स क्वेश्चंस दिस प्रोग्रेसिव मॉडल and allows us to see both refined and quotidian. Quotidian means mundane or routine objects in a different light. How something is made is as important as why it is made. Ultimate goal is informed by cultural curiosity, inclination. तो मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड देखना चाहिए हमको किसी भी चीज को समझने के लिए. क्या उसमें थॉट प्रोसेस थी, क्या उसकी क्रॉस कल्चरल स्टडी थी, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट थे, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग. व्हाट इज सेइंग इज एनीथिंग दैट यू सी, ऑब्जेक्ट दैट यू सी, तो उसको जो जिस तरीके से आज हम देखते हैं तो उसमें भी फेल टू टेक इनटू अकाउंट अ लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स दैट वर देयर एट द टाइम ऑफ इट्स मेकिंग. अ लॉट ऑफ दोज सेंसेस लाइक टैक्टाइल और हैप्टिक थिंग्स. एंड ऑल्सो ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, जो आज टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट है, लेकिन ये व्यू को चैलेंज किया गया है एंड देयरफॉर वी कैन सी थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट. So let's go to the questions. Material literacy, not in accordance. तो material literacy क्या होता है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ materially illiterate sight और visual analysis को ही देखते हैं, right? We don't consider anything else. Appreciating the work of artisans who mark their products and those appearing in written record, ये क्या मतलब? Recognizing the artisan's thought process and properties of the materials used. So it is not in accordance with material literacy, right? That means material literacy के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, तो ये तो होना चाहिए. So this is not the answer. Appreciating the cultural and social economy, ये भी होना चाहिए. How they shape, ये भी होना चाहिए. Correct answer is 1. Right? Yes, sir. Which following best? अब आ गया एक मजेदार क्वेश्चन. Now when I was doing this, तो आप अगर इसको उनकी जो फॉर्मेट है उसमें करोगे, तो जो आपका फोन साइज होगा ना, तो मेरा फोन साइज उसमें ऐसा था कि जो मेट्रोपोल है ना, ये खत्म होते होते यहाँ तक आ गया था उसमें. अब इन महान लोगों ने क्या किया कि हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन दे देते हैं. वहां पे इसमें लाइन नहीं दी हुई है बीच में, ठीक है. आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग. Yes, sir. हाँ Yes, सर, मेरे साथ भी होता है. So when I said third paragraph, so I immediately went and looked at this paragraph. मैंने भी वो पढ़ लिया था पूरा. हाँ, जैसे मैंने ही पढ़ा था वही जो आपने. हाँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे लगा ये तो इसी का पार्ट है, क्योंकि ये मेट्रोपोल मेरी स्क्रीन पे यहाँ तक आ गया था. तो अब कौन कह सकता है कि nobody will be able to say ना कि ये तो सेकंड पैराग्राफ चल रहा है भाई. तो हाँ सर, आपका पॉइंट है, बट वो फिर 2 ऑप्शन कॉन्गो वाले देख लिए थे ना, फिर मैंने एक बार वापस पैराग्राफ देख लिया. नहीं, वो बात ठीक है आपकी, वो बात ठीक है, लेकिन टाइम तो वेस्ट हो गया ना कि हमने ये वाला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा फिर से, क्योंकि इसने थर्ड पैराग्राफ का मेन आइडिया पूछा. देन वी वेंट बैक टू एंड देन वी फाइंड ये कॉन्गो वीवर क्या बोल रहा है यार ये, ठीक है. एंड देन आई लुक्ड एट इट, देन आई रियलाइज अरे ये मेट्रोपोल के बाद में छोटी सी जगह बची हुई है, इतनी नहीं थी उसमें, देखो इतनी होती तो दिख जाता. एंड देन the great fellow has not even introduced a line between them. ये गलती से नहीं आया, ऐसा ही था वहां पे. हाँ सर, ऐसा ही था. ऐसे ही था ना. तो अब इसमें क्या करेंगे आप? innate potentials can slightly influence the condition of object creation can be best understood by. तो ठीक है, इसमें आपने इसको देखा कि इसका जो फ्रंट है वो मत देखो, बैक देखो. लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि सरफेस, सबस्ट्रेट और बैक, ये तो यही खत्म हो गया ना. मटीरियल आर द क्रूशियल स्टेप इन डेल्विंग इनटू दिस हिडन हिस्ट्री. द इनहेरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ पर्टिकुलर मीडियम कैन रिस्ट्रिक्ट कॉन्गो वीवर्स. पूरा ये कॉन्गो वीवर्स के ऊपर बात कर रहा है. सच एडेप्टेशन, फिनिश ऑब्जेक्ट्स, रिजल्ट फॉर्म एंट्री. हाँ, तो मैंने 4th मार्क करा था इसका आंसर. हाँ, मतलब I also thought कि ये सेकंड कैसे इसका आंसर है यार. कंडीशन कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय दिस. इज दिस द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस पैसेज? आई डोंट एग्री टू दिस. मतलब इसमें तो कोई भी इनफैक्ट सही आंसर नहीं है, तो छोड़ दो. विच द फॉलोइंग मोस्ट चैलेंजेस सीरियसली चैलेंजेस द प्रोग्रेसिव, ये ठीक है, दिस इज ओके, गुड क्वेश्चन.
प्रोग्रेसिव मतलब ये कि आज तक की टेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ट है। तो वो आप अगर बोलोगे कि 2000 year old discovered in South America has techniques that are still used today, so then this defeats this progressive model. So this 3 is the right answer. बाकी के इसमें और कुछ लग रहा था क्या कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। All of the following could be seen in accordance with the passage except, ये देखो आज ही किया हमने, right? So if true would not be except, that means which of the following is in accordance with the passage, इन अकॉर्डेंस। right? So digitized are at best approximation, ये सही है, यही कह रहा है, यस सर। है ना, यही कह रहा है ये। ओके, सो फाइनल वर्ड्स, एनी फाइनल वर्ड्स? सर नहीं मजा आई सर, मॉक देने में मतलब मजा नहीं आया सर। मेरा मतलब एक मिस्टेक हो गया कि ये लास्ट वाला पैराग्राफ मैंने मतलब छोड़ दिया। तो ये वाला मतलब बाद में किया तो सर 4 के चारों सही हो गए, बट स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये डेंस पैसेज है, तो मैंने इसलिए इसको रोक के मैंने ब्लैक होल उठाया था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड हूँ। सोचा कि आज वो तो कर ब्लैक होल में कितने सही हुए? उसमें सर 2 ही सही हुए, 2 गलती हो गए। ठीक है, ऐसा देखो होता है, इसीलिए मैं आपको बार बार अब यही कहूंगा कि 3 आरसी करने की आदत डालो, है ना। मतलब 2 आरसी जो है ना वो थोड़ा सा कई बार मुश्किल में डाल सकता है हमको, तो प्लीज एलिवेट योर गेम नाउ। एंड दैट डे वी डिड द एक्सरसाइज, कल हम जिस तरह से कर रहे थे उस तरह की और एक्सरसाइज करेंगे कि टाइम बाउंड करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 आरसी करोगे ना, भले ही आप वीए में आप पैरा जंबल या कुछ छोड़ दो, 5 ही क्वेश्चन करो, बट एटलीस्ट आप 12 और 5 17 भी क्वेश्चन करोगे ना तो ठीक है। अदरवाइज अगर 2 आरसी और बाकी 8 वीए करोगे तो इसमें रिस्क रहता है यार कि कोई सी आरसी अगर गलत पकड़ में आ गई है, 2 क्वेश्चन है 3 गलत हो गए, तो फिर और बाकी 2 कर सकते हो आप अगर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यस सर, इस बार सर डेंस था, क्योंकि पिछले बार सर 3 सेट कर लिया था, बट इस बार थोड़ा पढ़ने में टाइम लग गया समझने में पैसेजेस, तो 2 ही कर पाया इस बार। हाँ कोई बात नहीं, वो तो होगा क्योंकि ये डिफिकल्ट पैसेज थे। यस दिस वाज ड्रेनिंग, यस करेक्ट, यू आर वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग है जैसा भी है, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, सो इट्स ओके, बट वील टेक इट। देखो किसी भी चीज को वहीं पे रख दो, उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही रखो। उसमें से जो आज हमें नई चीज सीखने को मिली कि नेक्रोपॉलिटिक्स क्या होती है, नेक्रो रेजिस्टेंस क्या होती है, हॉकिंग पैराडॉक्स क्या होता है, तो दीज आर द टेक अवेज, राइट? लेट्स टेक देम अवे एंड फॉरगेट द रेस्ट। ऑलराइट, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। बाय सर। गुड नाइट सर, बाय बाय। थैंक यू सर।